Hey, hi, Himanshu. Hey, So, hey, hi. Hi, yeah, Evan. yeah. So, Himanshu is M Tech from IIT Bombay और currently इस वाले प्लेसमेंट सीजन में हिमांशु बैठे थे और हिमांशु गॉट प्लेस्ड इन ड्रीम्स 11 एज वेल एज फुजित्सु। क्या प्रोफाइल है, सब कुछ जानेंगे, पैसे के बारे में भी जानेंगे और क्या क्या प्रश्न पूछे गए, क्या प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी थी हिमांशु की, वो सारी बातें करेंगे हिमांशु के साथ। सो हाय हिमांशु, थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस। Yeah, thank you so much. Feels good to share my experience with others. या सो हिमांशु, अब सीधे बात करते हैं ड्रीम्स 11 की भाई। तो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस ड्रीम्स 11 का? पहले ये बता दो कि प्रोफाइल क्या थी, उसके बाद Hmm. कुछ कितने नंबर ऑफ राउंड्स थे, एंड देन फिर हम राउंड्स इन डिटेल बात करेंगे। Okay, so Dream 11 का प्रोफाइल जो था वो एमएल साइंटिस्ट का था, which is basically more the product oriented role where you'll get to do um, the role basically is कि आप जो भी रिसर्च हुआ रहता है typically take that and apply it to their products. Their product being whatever the application that the gamification of multiple things that they do through sports. So usi mein you have to do a lot of things, applying whatever research is out there using that. So that is the small description of the role. And rounds हुए थे Dream 11 के there were three rounds in total. One was the basic technical come ML round where we discuss the basics of ML and some DSA related questions as well. There was another round which was managerial round. ये round थोड़ा detailed discussion पे हुआ and it was a free flowing round as opposed to कि आप जो books में theory पढ़ के गए हो या कुछ भी. It was less of that and more कि जो भी topic आपने अपने resume में या फिर कहीं पे भी mention किया है या आप discussion में भी बोलते हो, based on that the interview would flow. So this was the managerial round and third and final round was the HR round, which is, I think, everybody knows what an HR round is. It's a general discussion about company strategy and how do we fit in the company and where do you see yourself in 5 years, maybe. This is a typical question. So it's type of question. So that there were three rounds in total. सो ये तो थे इंटरव्यू राउंड्स, राइट? लेकिन इससे पहले कोई प्री राउंड Right. हुआ था जिससे कि शॉर्टलिस्ट हुए थे इंटरव्यूज के लिए? So as the requirement is for most of the companies, there was a coding round as well. हम्म। और ड्रीम 11 के कोडिंग राउंड में there were ML questions as well as DSA related questions. And I think the ड्रीम 11 का जितने भी मैंने प्लेसमेंट सीजन में ऑनलाइन राउंड्स दिए थे, ड्रीम 11 was one of the hardest in terms of DSA also. क्योंकि जहां तक मुझे पता है कि there was one question, तीन DSA के क्वेश्चन थे. There were three questions out of which one of the questions was not solvable in the given limits. जो भी because for all the DSA question, if anybody knows, there is input के limits दिए रहते हैं कि this is the upper bound on the time that you can have, this is the input size that you will get. ये सारे limits दिए रहते हैं and the optimal solution for that question required more time or more complexity than was mentioned there. So this was one of the tougher DSA plus ML round. ML के question were mostly straightforward, but some of them required थोड़ा सा atypical thinking. थोड़ा आपको अपना दिमाग यूज करना पड़ेगा, but other than that it was mostly जो ML interviews के लिए preparation रहती है that should work there. नाइस। सो मतलब एक जो इंटरव्यू शॉर्टलिस्टिंग के लिए जो आपकी कोडिंग राउंड थी, उसके फॉलोड बाय 3 Mm-hmm. इंटरव्यू राउंड्स, राइट? और Three interview rounds, yeah. राइट। सो अगर अगर थोड़ा सा भी याद हो कोडिंग राउंड के बारे में कि किस प्रकार के क्वेश्चन थे, Mm-hmm. या फिर जो भी एमएल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस थे, एमसीक्यू थे या कोडिंग थे, Mm-hmm. सो थोड़ा अगर स्पेसिफिक में Right. बताना चाहो तो व्यूअर्स के लिए काफ़ी बेनिफिट होगा। Right. So mostly उसमें MCQs ही थे. हम्म। I think एक या दो numerical type थे, but other than that mostly they were MCQs. And these were from the basic concepts of ML only. ऐसा कुछ हाई-फाई ट्रांसफॉर्मर या इन सब चीज़ों से रिलेटेड नहीं था. ये सारी चीज़ें जितना मैंने देखा है ML इंटरव्यूज में, these things are pushed back to the interview rounds. Online rounds are mostly straightforward. The basic ML theory that is out there related, question related to SVMs, question related to regression, be it linear, be it logistic, be it ridge regression, laser regression, कुछ भी.
नाइव बेस हो गया, एंड डिफरेंट टाइप ऑफ हाई क्लस्टरिंग मेथड्स हो गए, ओवरफिटिंग, अंडरफिटिंग, बायस वेरिएंस ट्रेड ऑफ. सो दीज आर द कॉन्सेप्ट्स दैट दीज क्वेश्चंस टिपिकली कवर. ऐसा कुछ बहुत ज्यादा एटिपिकल या बहुत ज्यादा रिसर्च रिलेटेड इन सब में नहीं आता, बेसिक एमएल थ्योरी सर. राइट। अरे तो फिर जान के अच्छा लगा कि क्लासिकल मशीन लर्निंग और क्लासिकल डीप लर्निंग भी लोग पूछ रहे हैं, वरना लिंक्डइन खोलो तो ऐसा लगता है हम्म. एलएलएम्स पे ही बातें चल रही हैं। सो हाइप अलग है एलएलएम्स की, लेकिन ग्राउंड रियलिटी है कि हाँ. क्लासिकल मशीन लर्निंग, क्लासिकल डीप लर्निंग हर जगह पूछी जा रही है, एटलीस्ट इन द फिल्टरिंग राउंड्स। हम्म. हाँ, फिल्टरिंग राउंड्स में तो वही रहेगा, बेस्ड ऑन कि आप किस टाइप के रोल के लिए अप्लाई कर रहे हो. देन इट डिपेंड्स कि फॉर एग्जांपल अगर आप रिसर्च रोल के लिए अप्लाई कर रहे हो तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें आ जाती हैं कि एलएलएम हो गया, या फिर प्रॉम्प्ट ट्यूनिंग हो गई, या इंस्ट्रक्शन फाइन ट्यूनिंग हो गई. ये सारी चीज़ें जो देखा जाए तो इज अ लिटिल मोर एडवांस टू आस्क इन इंटरव्यूज, बट स्टिल डिपेंडिंग ऑन द रोल. आपने अगर रेज्यूमे मेंशन किया है तो फिर तो it's definitely something which can be discussed. So that is something which is kept for the interview rounds, not the shortlisting rounds. राइट। ऑल्सो टॉक अबाउट कि ये जो एमसीक्यूज थे ये मशीन लर्निंग के हो गए, एंड जो इसके साथ ही हम्म. कोडिंग कोडिंग राउंड भी इसी के साथ ही था। हाँ जी, हाँ, कोडिंग राउंड जो था, मैं आपको एक पूरा पूरा ओवरव्यू दे देता हूँ कि जो ऑनलाइन राउंड था इसका वो कैसा था. सो देयर वर 3 कोडिंग क्वेश्चंस, एंड अदर देन दैट देयर वर 15 to 20 एमसीक्यू क्वेश्चंस. कोडिंग क्वेश्चंस तो सारे वही डीएसए बेस्ड ही थे, कुछ भी ऐसे एडवांस नहीं. एंड एमसीक्यूज वर कम्प्लीटली फ्रॉम मशीन लर्निंग. ओके। सो वहाँ पे भी ऐसा कुछ बहुत ज्यादा एडवांस नहीं, बेसिक मशीन लर्निंग, बेसिक डीप लर्निंग, दैट्स इट. कितना टाइम दिया गया था आपको? I think this was a 2 hour test, जिसमें से 1 hour 30 minutes was for the coding round, the 3 coding questions, and the 30 minutes were for MCQs. As I said, कि MCQs बहुत ज़्यादा straight forward थे. More or less अगर आपने पढ़ा है तो फिर आप कर लोगे. Just एक दो question वैसे थे where you had to apply some more thinking than just कि retrieval of information से थोड़ा सा ज़्यादा वहाँ पे लगेगा, but most of the MCQs were easy, so 30 minutes were more than enough. The DSA questions were of varying level. Easy, medium, hard is तीनों टाइप के थे, और I would say easy medium के 2 क्वेश्चन थे, और one became hard, although it was medium hard. I'm speaking from lead code perspective. So lead code के perspective से you can count it as medium hard, but it became hard because the solution actually did not exist for that question. उन्होंने शायद जानबूझ के ही देखने के लिए कि how optimal can you write even when the restrictions and these things are given to you. आप कैसा, what is your thinking process? I think that is what they wanted to see there. राइट। हल्का बहुत क्वेश्चंस याद हैं क्या कि वो 3 क्वेश्चंस या फिर एटलीस्ट कॉन्सेप्ट्स की, इन कॉन्सेप्ट्स के इर्द गिर्द क्वेश्चंस पूछे गए थे? So I can tell you the concept. I do not remember the exact question, Yeah. लेकिन ज़्यादातर I think डेटा स्ट्रक्चर से कम था, एल्गोरिदम से ज़्यादा था. तो डायनेमिक प्रोग्रामिंग का था. The third question which I'm saying was not solvable was from dynamic programming. So that was one. Then there were 2 more questions. One of them I think could be solved by greedy or DP. So that was there, and one was very straightforward. I think linked list एक इसी चीज से था. So that was there. So these were the concepts. थोड़ा बहुत I think I remember the third question, the difficult one. It was some choosing of card based question कि आपको cards दिए हुए हैं, आपको unlimited choice है कि however many cards you can choose from whichever pool you want, and then you had to find the number of ways you can choose or something like that. But yeah, so DP का question था ये. Okay, nice. Nice. So this was about the shortlisting round. Let's talk Yeah. about round 1. So how was it? Okay, so round 1 was pretty straightforward. Again, it was more of a basic concept round. So again, round 1 में the starting happened with asking of a few DSA questions. And this one, I think I remember, there were 2 DSA based questions and pretty standard straightforward question. पहला वाला was binary search से. You have been given a 2D matrix and you have to 2D sorted matrix, and you have to search in that matrix. So this was one question. It's a pretty standard question. Another one was, I think, there is a sequence of ones and zeros in multiple rows, and it is in a sorted form. So all zeros followed by all ones.
एंड देयर आर मल्टीपल रोज लाइक दिस, यू हैव टू फाइंड द रो जिसमें कि वन जो है सबसे पहले स्टार्ट हो जाए, सो द लेफ्ट मोस्ट वन वाला रो यू हैव टू फाइंड, या. Okay. So these were the two DSA questions. Both are standard DSA questions, so I don't think I do not judge this to be medium hard या कुछ भी ऐसा. So it was straightforward. DSA के ऊपर straightforward question थे. Then the questions related to ML were of that kind जहाँ पे आपको थोड़ा सा सोचना पड़े. These were not straightforward या bookish questions. So इसमें थोड़ा बहुत discussion based back and forth हुआ हमारा. And this was a little more advanced than what you study just in the basic ML या फिर DL course में. So these questions involved this involved situation based question where they were telling me कि we want to do some particular kind of analysis, and this is the kind of data that you have. Now, which modeling would you use? Why would you use it? Justify the choice of the model that you are working with here. What is the complexity of running this algorithm? So इस type के questions थे इस वाले round में. And then थोड़े बहुत question resume से based on the projects that I had previously done. I think these questions are typically asked to find an alignment कि जो existing projects हैं company के पास, और जो projects resume में mention है, so that they can find an alignment कि which particular work can this guy be assigned to, Right. or can he be is there a candidate who can directly hop on to some existing project, so Right. things like that. तो इसलिए पूछे गए थे. Right. So talking about कि उन्होंने data दिया और फिर they were asking some kind of analysis. Can you be Mhm. more specific, because I'm not getting any idea about what kind of question it was Right. and how was the Mhm. discussion? Okay. So I'll give you one of the different questions that they asked. So it was something like that they had cricket se related data, and this cricket se related data, Obviously. yeah. So cricket se related data was numerical data of various parameters of of the field. So for example, की field setting कैसी है, कहाँ पे कौन सा placed है batsman, slip में कितने लोग placed हैं, गली में कितने लोग placed हैं, and so on and so on. And along with that, there was data of ki, what is the speed of the bowler right now? Did he start on the left or the right of the wicket? So ये सारी चीजें. So इस तरीके का information दिया था, and you had to create a model, create some kind of modeling जिससे you can predict the kind of the ball that the bowler is going to bowl next. So it can be an in swinger, it can be out swinger, it can be a pace ball. So various kinds of bowling styles. You have to predict कि किस type की bowling करने वाला. Run up का So, size was also, I think, a yeah, parameter. okay. Yeah. So basically a classification task. Right, right. So आपको फिर ये data दे दिया गया, what kind of modeling you would apply, किस तरीके से इस problem को treat करोगे. So you will use a classifier here. What kind of classifier would you use? Why would you go for multi-class classifier, not a binary classifier? Multi-class में what kind of multi-class classification would you do? Would you use SVM classifier, or would you use a logistic regression classifier? How would you, given this numerical data, do you think a deep network makes sense here, or does it not? To extract more rich features as it. So typical questions were from this type of question. Right. So the interesting question was कि whether you will use neural networks or not here. So did they ask you this Right. question, and what was your answer? So I said that you do not really need neural network for this. You can do feature modeling because the data is already numerical. You do not need a deep network to extract features from, because deep network का usage ही वही है कि if there's a data which cannot be numerically understood that well, और या फिर जहाँ से feature निकालने की जरूरत है, deep networks do that well. As opposed to that, because we already had features extracted in numerical form, you do not need stochastic computation to be applied there. You can do deterministic calculation. For example, if you have speed, then you can calculate. If you have speed and you have distance, you can deterministically calculate कि कितना time लगेगा Correct. run up में, right? So you can deterministically model these features yourself, as opposed to saying कि ये रहा एक network जिसमें जो probabilistically कुछ सीख जाता है और कुछ probabilistically features निकाल लेता है.
So rather than doing that, you have deterministic formulas. कि time is equal to so and so with speed and distance. So you can do that. So that was my answer, not to use a deep network, rather to explicitly model whatever features you deem necessary. Also, what you were talking about, more advanced data feature engineering there as well, or so were there any kind of discussion in feature engineering space as well, or it was only about modeling? There was some feature engineering based questions as well. कि how would you model the different features? What exactly would be the features that you think would be necessary यहाँ पे? But not a lot of discussion in terms of feature engineering यहाँ पे. In a later round, which was the managerial round, वहाँ पे थोड़ा डिटेल डिस्कशन हुआ था कि फीचर्स कैसे मॉडल करेंगे, या फिर कौन से फीचर्स मॉडल करेंगे, ये सब कुछ. नाइस, तो अब बात चली रही है तो फिर नेक्स्ट राउंड में चलते हैं. भाई ने पहले राउंड में आग लगा दी होगी, तो फिर भाई नेक्स्ट राउंड कैसे था? अच्छा, बाय द वे, ये हाँ. सुबह हो रहा था कि क्या, किस टाइम पे हो रहा था? क्योंकि मुझे पता है कि सुबह 4 बजे से राउंड स्टार्ट हो जाते हैं, तो नहीं, चार इतने कभी कभी इतने जल्दी नहीं होता है. सो दिस वाज आई थिंक दिस वाज माय फर्स्ट इंटरव्यू ऑन द फर्स्ट डे, एंड दिस वाज आई थिंक हैपनिंग ऑन 8 AM. सो ये मेरा सबसे पहला इंटरव्यू था पूरे प्लेसमेंट प्रोसेस का. तो सो रात को सोए थे, माइंड फ्रेश था, या रात को नींद नहीं आई? नहीं नहीं, रात को नींद आ गई थी क्योंकि कंपनी आई थी डे 2 पे, और डे 1 पे मेरी एक भी शॉर्ट लिस्टिंग नहीं हुई थी. अच्छा. तो मैं बहुत चैन से सो गया था कि आराम से सोते हैं, कल उठ के फ्रेश माइंड से जाएंगे इंटरव्यू अच्छा, देने. तो दिस दिस इज डे टू. या डे 2. अच्छा, ओके, नाइस. या सो लेट्स टॉक अबाउट राउंड टू. भाई राउंड टू कैसा था? सो एक्चुअली देयर वाज थोड़ा सा टॉप सीट अभी हुआ था यहाँ पे, क्योंकि उनके इंजीनियर्स वर देयर. उनके एचआर की टीम भी आ गई थी, बट द मैनेजरियल टीम वाज नॉट देयर. हाँ. सो रादर देन द सीक्वेंस की टेक्निकल राउंड, मैनेजरियल राउंड, देन एचआर राउंड, मेरा टेक्निकल राउंड, एचआर राउंड, मैनेजरियल राउंड ऐसे हुआ था. सो एंड इट वाज क्वाइट फास्ट पेस्ड. मैं जब तक के लिए दूसरे इंटरव्यू में जाने के लिए निकल ही रहा था, दे सेड कि कम फॉर द एचआर राउंड. अच्छा. So there was no break in between. Directly for HR round हुआ. I think there's one anecdote that I think I can tell from the HR round, and this is more on the side of कि what does an HR person expect you to answer as opposed to, because क्या होता है कि technical rounds पे हम focus कर लेते हैं, HR round लगता है कि हो जाएगा, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं पूछेंगे. Where do you see yourself in 5 years? How do you align with the company? इस टाइप के क्वेश्चंस तो रहते ही हैं, बट देर आर समटाइम्स एटिपिकल क्वेश्चंस एज वेल. सो आई गिव यू वन एग्जांपल जो कि इस इंटरव्यू में हुआ था. सो द एचआर गाय आस्क्ड मी कि आई विल गिव यू अ सिचुएशन, टेल मी हाउ यू विल हैंडल दिस. एंड द सिचुएशन बेसिकली वाज दैट आई एम लीडिंग सम टीम इन द कंपनी, एंड उस टीम में देयर इज एन एम्प्लॉय हु इज नॉट वर्किंग, हु इज नॉट डूइंग द टास्क दैट ही हैज बीन गिवन. हाउ डू यू टैकल दिस सिचुएशन? सी टिपिकली क्या होता है कि एचआर राउंड में आपको ट्राई किया जाता है कॉर्नर करने का, ऐसे सिचुएशन देने का जहाँ पे आप कुछ शायद अच्छा ना बोल पाओ. देयर इज नथिंग पॉजिटिव दैट यू कैन से. सो योर माइंड शुड ऑलवेज वर्क इन द वे कि व्हाट पॉजिटिव आउटकम कैन आई ब्रिंग फ्रॉम माय आंसर इज व्हाट दे वांट टू सी. So I gave a very basic answer ki because I am in the company, then I would expect that anybody who's working with me is competent, and hence they have been hired to work for that company. So competency is something that is required. I will try to understand why the work was not done, and if there is no reason, ऐसा कोई justified reason नहीं है, तो then the person is wasting company's resources, which is valuable, right? So because everybody is working for that organization, the resources of the organization are valuable, and the time is of importance. So that is something which will not fly with me, and then I'll have to flag it. Otherwise, if there is something which can be dealt with, we can handle or deal with it within the team itself. Right. So basically, you have to answer for the company, not the against the company. Yeah, for the company, but ये भी नहीं बोल सकते कि एम्प्लॉय को मार देंगे, निकाल देंगे कंपनी से, because that also is something That that is they do not in not your want. hand, right? Yeah, Yeah, correct. yeah. तो एक चीज जो सीखने वाली ये थी कि भाई, हाँ, बहुत ही अच्छा खेला आपने कि हाँ भाई, रिसोर्सेज वेस्ट कर रहे हैं, आप क्या करें? क्योंकि कंपनी भी तो उसी नजरिए से देख रही है ना भाई, वो प्रश्न भी उसी नजरिए से ही है कि भाई टाइम तो वेस्ट कर ही रहा है. Exactly, नाइस. exactly. Yeah. सो दिस वाज योर एचआर राउंड. और ये कंपनीज करती भी हैं आईआईटीज में प्लेसमेंट की वजह से कि भाई अगर आप दूसरे राउंड में चले गए, वहां पे कहीं फटाफट खत्म हो गया, तो फिर
वहीं पे ही उठा ले हम्म। जाओगे, तो फिर जाने क्यों देना। हाँ, राइट। राइट राइट राइट, या। नाइस। सो एचआर राउंड वाज फन। एचआर राउंड वाज फन, वही टिपिकल एचआर क्वेश्चंस तो रहते हैं, एक आध इस टाइप के क्वेश्चन बस। तो या कुछ नोट्स वोट्स बनाए थे या फिर ऐसे ही ऑन द फ्लाई जो मन किया वही दे दिया आंसर। नहीं नहीं, जो मन किया वही दिया। एचआर राउंड के लिए इतने नोट्स बनाने की जरूरत नहीं, बस द बेसिक प्रिंसिपल इज दैट ओनली, या कि एचआर राउंड आप इज ट्राइंग टू फाइंड कि हाउ वेल द पर्सन अलाइंस विद द कंपनीज कल्चर, बिकॉज हर एक कंपनी का अलग अलग होता है। देयर आर बिग एमएनसीज, इवन फार्म्स वेयर द वर्क कल्चर इज वेरी बैड। वो होता है कि 18-18 घंटे भी कभी कभी काम चले जाता है। सो दे विल एसेस यू फ्रॉम दैट लेंस कि ये बंदा ऐसा तो नहीं है कि 8 घंटे बाद बोलेगा कि नहीं मेरा पे शिफ्ट खत्म हो गया, मैं जा रहा हूँ। सो इफ दे एसेंशियली वांट टू फाइंड एन अलाइनमेंट, कि जो भी हमारा कल्चर है, जो भी जिस तरीके से हम काम करते हैं, ये बंदा उस तरीके से काम कर पाएगा कि नहीं कर करेक्ट। पाएगा। अब मेरे ख्याल से बेसिकली सेंसेस में वो सेंसिबल बातें करोगे तो एचआर राउंड निकल जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती। हाँ हाँ हाँ, या। नाइस नाइस। तो फिर आपका जो राउंड 3 हुआ, जो कि टेक्निकली राउंड 2 होने वाला था, हाउ वाज इट। हम्म। So this was I think the most interesting interview round that I gave overall मेरे पूरे placement process में, because this was an open discussion round। और जैसा कि मैंने बताया था कि technical round में, so something that I should mention is that कि हर एक round के बाद end में the company folks typically ask you if you have any question for them। And I think this is थोड़ा सा वो ट्रिक खेलते हैं, रिवर्स साइकोलॉजी खेलते हैं यहाँ पे, बिकॉज दे आस्क यू टू आस्क क्वेश्चंस टू देम, बट उसमें भी वो आपको थोड़ा ना थोड़ा तो जज कर रहे होते हैं। बिकॉज करेक्ट इफ यू आस्क अ क्वेश्चन कि चाय कितनी बार मिलती है दिन में, इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लोगे कि खाना मिलता है कि नहीं, पूछ सकते हो, दीज आर फन थिंग्स, बट एट द सेम टाइम यू शुड ऑल्सो हैव सम इंटरेस्ट इन कि काम क्या चल रहा है वहाँ पे, व्हाट एग्जैक्टली आर यू गोइंग टू वर्क ऑन, व्हाट इज देयर टीम करेंटली वर्किंग ऑन, करेक्ट। because that is something that they can answer much better, and this again leads to some kind of discussion as well। So first round में जो technical round था उसमें उन्होंने question पूछा, तो I asked them कि what is the work or what are the technologies or what are the different kind of modeling that they do, जो भी requirement होती है उनके लिए। So they also hinted that they use something called causal modeling और causal inference। करेक्ट। अ, तो ये एक टॉपिक होता है कॉजल इन्फरेंस का, तो वो उन्होंने मेंशन किया था, एंड आई हैव वेरी ऐसा फेंट सा नॉलेज अबाउट दैट टॉपिक। कभी मैंने यूट्यूब पे कुछ वीडियो देखी थी, कहीं कुछ पढ़ लिया था आर्टिकल, तो वैसा टाइप का नॉलेज था मेरा। बट मैं थर्ड राउंड में जैसे ही पहुंचा, उन्होंने पूछा कि हाउ वाज योर फर्स्ट एंड सेकंड राउंड। आई सेड वेरी गुड, एंड देन आई सेड कि आई फाउंड दिस दैट जो भी काम चल रहा है बहुत इंटरेस्टिंग कॉजल इन्फरेंस में, is something which I find very interesting। So then he hooked onto it. The manager actually hooked onto that topic। So as I said कि ये interviews are completely free flowing, कुछ भी पूछ सकते हैं वो, आपके resume से पूछ लिया, आपने एक word बोल दिया उससे पूछ लिया। So this is also something which becomes very important। अगर आप resume में कोई शब्द आधा भी लिख रहे हो तो make sure that you know it thoroughly। करेक्ट। उस शब्द का मीनिंग, उस शब्द से जुड़े हुए 4 और शब्द का मीनिंग, just know it thoroughly, that becomes very important। So he started asking question about causal inference, and I hinted कि मुझे उतना ज़्यादा नहीं पता है, but जो because it's a discussion round, he was quite supportive in that form कि he said कि चलो ठीक है, if you do not know we will try to derive the maths for it, and paper pen दे दिया उन्होंने, and then we derived the maths for causal inference कि अगर आपको causal inference करना है किसी चीज़ का, कोई भी आपके पास पैरामीटर्स है x और किसी चीज़ कोई पैरामीटर y के लिए आपको causal inference करना है, which basically means कि you have to find out you have x1, x2, x3, and you have a output y। You have to find out if x1 implies y, x2 implies y, x3 implies y। इसमें से कौन सा सच है? This is basically a very layman explanation of what causal inference is। करेक्ट। So this was the discussion, and we derived the mathematics for it कि how would you go about running this process, how would you design some training loop, या फिर anything which can help you learn this mapping from x1 to y, x2 to y, x3 to y, जो भी इसमें से सच हो, how do you figure this out। So this was the first part of the interview। Second part of the interview was based on the resume projects that I had mentioned। So my master's thesis project is based on retrieval augmented generation and machine translation। So the second part of discussion was motivated from these technologies only कि how would you use RAG in a certain kind of situation, live systems में use कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं,
द आंसर टू विच आई गेव वाज नो, बिकॉज उनका जो लाइफ सिचुएशन, इट इज़ वेरी हाई फ्रीक्वेंसी लाइफ सिचुएशन, बेट्स तुरंत तुरंत लगते हैं, और दी ऑन दी ऐप द ट्रांजैक्शंस, लेट मी कॉल इट, हैपन वेरी फास्ट. सो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए आई सेड दैट नो, इट डज नॉट suit for a live situation. Offline situations might can help. And third one was again a modeling based question. And the modeling based question was that you have historical data of cricket Hmm. in appendage to the data that जो भी current match का data है, वही bowler का speed, bowler का run up कितना है, batsman कौन से position पे है, फील्डिंग कैसी सेट है, ये सारे डेटा के साथ हिस्टोरिकल डेटा है, वीडियो फुटेज है. सो हाउ वुड यू क्रिएट एन एंटायर सिस्टम आउट ऑफ दिस टू प्रिडिक्ट द नेक्स्ट बॉल? और देन वी द डिस्कशन मूव्ड ऑन टू कि डीप न्यूरल नेटवर्क लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए. सो बिकॉज वीडियो फीचर्स हैं, फ्रेम्स हैं, इन सबको एनालाइज करने के लिए, देन इट मेक सेंस टू यूज समथिंग लाइक डीप न्यूरल नेटवर्क एंड ऑल दोस थिंग्स. Right. Yeah, so more or less discussion of the managerial round was like this. So I have couple of questions. First कि जाते ही जब इस राउंड की शुरुआत हुई, तो you mentioned about causal inference just because कि फर्स्ट राउंड में उन लोगों ने कुछ causal inference पे हिंट दिया था, इसलिए आपने वो causal inference का लफ्ज़ बोला स्टार्टिंग में. दूसरी चीज़ कि राउंड्स के बीच में थोड़ा सा देख लिया था causal inference के बारे में कि नहीं बस ऐसे ही बोल नहीं दिया नहीं, था. मुझे लगा नहीं था कि नहीं, मुझे कॉजल इन्फ्लुएंस के बारे में थोड़ा बहुत पता था ऑलरेडी, एंड हाँ. आई बिकॉज आई फाइंड इट वेरी इंटरेस्टिंग, तो मैंने वहां पे मैनेजरियल राउंड में मेंशन कर दिया कि दिस इज समथिंग व्हिच इज इंटरेस्टिंग, आई फाइंड इंटरेस्ट इन, और मे बी इफ आई फ्रॉम द पर्सपेक्टिव कि अगर मैं ज्वाइन करूं अगर ड्रीम इलेवन, तो आई विल मे बी लाइक टू वर्क ऑन दिस एज अ टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट. Nice. सो उस पर्सपेक्टिव से मैंने बस नाम ले लिया था कि दिस इज अ गुड टॉपिक अकॉर्डिंग टू मी. राइस अंटिल एनालिस्ट मतलब अगर थोड़ा भी नहीं पढ़ा है तो फिर भाई वो मैथमेटिक्स की डेरिवेशन तो नहीं हो पाती. हाँ हाँ हाँ, थोड़ा ना थोड़ा रहना चाहिए. सो या इट्स मोर अबाउट बीइंग अ लिटिल केयरफुल. मैं थोड़ा बोल गया बोलने के लिए तो, बट इट्स मोर अबाउट बीइंग थोड़ा सा अटेंटिव एंड थोड़ा सा केयरफुल कि व्हाट आर यू स्पीकिंग अबाउट, एंड जिस चीज के बारे में अच्छी खासी नॉलेज हो, ट्राई टू टॉक अबाउट दैट ओनली, बिकॉज आप थोड़ा सा बोलोगे वो डिस्कशन फिर घूम फिर के उसी पे राउंड एंड राउंड चलेगा. तो इट्स बेटर टू कीप द डिस्कशन टू समथिंग दैट यू ऑलरेडी नो अबाउट. एंड अब सेकंड क्वेश्चन वाज कि यू मेंशन कि भाई वीडियो एनालिसिस करने के लिए फिर यू टॉक्ड अबाउट कि भाई हाँ न्यूरल नेटवर्क्स का इस्तेमाल करेंगे. सो कैन यू मोर टच अपॉन कि भाई वो वीडियो एनालिसिस वाला जो चीज़ था, हाउ वाज दैट डिस्कशन एंड वो वीडियो एनालिसिस कैसे की गई, मतलब कैसी बताई गई कि मतलब राइट. सो कैसे करेंगे. हाँ, सो हिस्टोरिकल डेटा दिया हुआ था. हिस्टोरिकल डेटा मींस मैचेस का डेटा एग्जिस्टिंग, और किस टाइम पे कौन सी बॉल फेंकी गई, कितने बजे, ये सारी चीजें रहती हैं डेटा में. और वीडियो फुटेज को वो कोलैबोरेट करता है हम्म. कि वीडियो फुटेज में इस मिनट से लेके इस मिनट तक बॉल नंबर, ओवर नंबर 15, बॉल नंबर ये, समथिंग लाइक दैट. ऑल दैट डेटा इज देयर. सो ऑल यू हैव टू डू इज कि वो वीडियो फुटेजेस आप निकालें, एंड वो वीडियो फुटेजेस को सेगमेंट कर लें बेस्ड ऑन जो भी वो मैच का डेटा है, सीक्वेंशियल डेटा, टाइम स्टैम्पिंग डेटा है. प्रॉब्लम बेस्ड ऑन दैट यू, सॉरी टू इंटरप्ट, प्रॉब्लम स्टेटमेंट सेम था क्या? क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम सेम 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 सेटअप था क्या? हाँ सेटअप सेम था. यू हैड टू डू द नेक्स्ट बॉल का प्रेडिक्शन कि नेक्स्ट बॉल कौन से टाइप की होगी. सो द सेटअप वाज सेम. डेटा थोड़ा इन्होंने बढ़ा दिया एज अपोज टू दैट. इट वाज जस्ट एन एक्सटेंशन टू द प्रीवियस क्वेश्चन. या सो फिर वो मॉडलिंग से हट के थोड़ा ज्यादा उस पर चला गया कि आप डेटा से फीचर एक्सट्रैक्ट कैसे करते हो. And वही, so I gave a simple modeling using deep neural networks कि आप you start with extracting the video footage के clips, छोटे छोटे clips of each of those bowls that were bowled, and उसमें ये वाला clip हटा भी दोगे कि fielding कैसी set है ये सारी, because that is an explicit feature that you already have. So उस type के features की जरूरत नहीं है. So now our feature set includes the video footage along with these numerical features that are out there, and along with that वहाँ पे कमेंट्री का डेटा भी था. तो कमेंट्री से भी बहुत सारी चीजें पता चलती हैं. कमेंट्री से ये पता चल जाता है कि बैट्समैन की सिचुएशन क्या है, कितने रन्स बचे हुए हैं, कितने और फिर फील्ड सेटिंग में, टेम्परेचर में, बहुत सारी चीज़ों में किस किस टाइप के वेरिएशंस आ रहे हैं, बॉल कितनी देर तक फेंक लिया गया है, अदर इट डिसाइड्स कि बॉल स्पिन होगी कि नहीं होगी, क्रीज की सिचुएशन क्या है, ये सारी चीज़ें. सो देयर वाज अ लॉट ऑफ फीचर देयर एज वेल. So I told them that you can use LLM to extract these features more explicitly कि आपको
आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे क्रीज की सिचुएशन चाहिए, साथ में मुझे ये चाहिए कि कितने रन्स बचे हुए हैं, ये सारी चीजें लेट्स से कि कमेंट्री से निकालना है, तो यू गिव दिस टू एन एलएलएम, जो कमेंट्री का डेटा है जो भी बोला गया है, एंड आस्क द एलएलएम टू एक्सट्रैक्ट द features more explicitly. So again, you have more numerical, more explicit features. So as explicit as the features would be, the more confident you'll be in your modeling. कि ऐसा जरूरी नहीं कि मॉडलिंग काम कर ही जाए, हम्म मॉडलिंग काम कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है। एंड व्हेन आई से मॉडलिंग, इट मींस कि आप किस टाइप से डेटा किसको इनपुट दे रहे हो और उससे आउटपुट क्या निकाल रहे हो। तो इट कैन इवन बी समथिंग लाइक अ बेजियन नेटवर्क, जहाँ पे आपने सारी चीजों को नोट्स बना दिया, एक ग्राफ बना दिया, एंड ग्राफ के बेसिस पे आप कुछ इन्फ्रेंस निकाल रहे हो। और इट कैन जस्ट बी अ क्लासिफायर जिसके इनपुट पैरामीटर्स x1 से लेकर xn तक आपने डिफाइन कर दिए, एंड यू आर एक्सपेक्टिंग अ क्लासिफिकेशन आउटपुट। सो मॉडलिंग हो सकता है सही, मतलब अच्छा रिजल्ट दे या खराब दे, बट अच्छा है तो भी आप कॉन्फिडेंट रह पाओगे कि इस वजह से अच्छा है, खराब है तो भी आप कॉन्फिडेंट रह पाओगे। सो बिकॉज एक्सप्लेनेबिलिटी बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि व्हाट वर्कड, व्हाट डिड नॉट वर्क इन दीज सिचुएशंस। राइट बिकॉज इनका जो रोल था वो इट इट हिट्स मोर टुवर्ड्स द डिटर्मिनिस्टिक साइड, क्योंकि राइट इनका एक प्रोडक्ट है जिसमें ये कोड लिखते हैं, दे डू नॉट वांट द कोड टू फेल, right? So if they want to ship something, they want to ship something which can be explained, करेक्ट right? So that's how the discussion went. There was more back and forth in this, but मैं overall just एक discussion का yeah, summary got बता it, रहा हूँ। got it, got it. So I got a overall idea कि numerical data features थे and commentary जो कि स्पीच को ऑलरेडी उन्होंने टेक्सचुअल में दे दिया है, फॉर एग्जांपल लेट्स से, सो दे दिया। टेक्स्ट फीचर भी है और Yeah. फिर वीडियो से सेगमेंट्स निकाल लिया आपने, ठीक है। सो हम्म न्यूमेरिकली इट इज क्लियर, टेक्सचुअली इट इज क्लियर। जो वीडियो का सेगमेंटेशन निकाला उसका क्या किया आपने? हम्म। सो वीडियो का जो सेगमेंटेशन था उससे एसेंशियली जितने भी वो फ्रेम्स थे, उन सारे फ्रेम्स को यू कैन पास इट थ्रू सम काइंड ऑफ कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क, हम्म राइट? एंड उसमें से आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो, जैसे पोज एस्टिमेशन इज वन थिंग दैट आई सजेस्ट इट कैन बी करेक्ट डन। सो सेगमेंटेशन करके बोलर का हर एक फ्रेम में सेगमेंटेशन करके व्हाट यू कैन डू इज यू कैन डू पोज एस्टिमेशन। अब आपके पास ओवर अ टाइम पीरियड आपके पास 4 फ्रेम्स हैं जिसमें यू नो व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ पोज। सो करेक्ट बेस्ड ऑन दैट यू कैन से व्हाट इज द नेक्स्ट पोज गोइंग टू बी। अगर आप नेक्स्ट पोज अगर आप एस्टिमेट कर सकते हो, तो देर इज मोस्टली कोई एक बॉलर होगा तो दे हैव 4 to 5 डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ थ्रोइंग अ बॉल, राइट? करेक्ट, तो फिंगर्स का मूवमेंट और ज्यादा से ज्यादा होंगे कि करेक्ट हाँ। राइट हाँ। सो बुमराह है तो देर इज अ स्पेसिफिक एक्शन, अगर हरभजन सिंह है तो दे हैव अ स्पेसिफिक एक्शन, whoever Brett Lee has a specific action. So based on the pose estimation, you can decide कि what kind of ball would the person be bowling. राइट। एंड इसको इम्प्रूव करने के लिए इंस्टेड ऑफ CNN वी कैन ऑल्सो यूज रीजन बेस्ड CNN, RCNN, एंड Right, right, right. लेटर ऑन इफ एनी ऑफ द व्यूअर इज थिंकिंग कि इसको और कैसे इम्प्रूव करेंगे, वी कैन ऑल्सो थिंक टू यूज YOLO, एंड सिंस इट इज Mm. images in segments or in sequence, you can also extract features and give this to LSTM or any kinds of sequence to sequence model, so that that will Yeah. be helpful. But yeah, um, I also did a similar kind of case study in my interview rounds during my placement, so yeah, very helpful. So I was Mm-hmm. asked कि भाई how you will detect violence in CCTV footage, so yeah, Right. वेरी नाइस। सो दिस वॉज योर राउंड, भाई ने आग लगा दी, फिर तभी बता दिया गया कि यू आर प्लेस्ड। या मोर और लेस उस समय बता दिया गया था, अंदर से पता चल जाता है तो। अच्छा, हाँ एक अंदर से आ जाता है कि हाँ भाई अच्छा गया था। सो नहीं नहीं, अंदर से मतलब यहाँ से तो है ही, लेकिन द प्लेसमेंट टीम एंड एवरीबॉडी दैट अच्छा इज अंदर देयर। से मतलब कोर मेंबर ने बता दिया हाँ हो गया ठीक है। अच्छा हाँ, नाइस नाइस। सो हाउ वाज द फीलिंग या भाई हाँ ठीक है, आप एटलीस्ट एक कंपनी तो हो गई है? हाँ, मोस्टली दैट बिकॉज वो प्लेसमेंट प्रोसेस में थोड़ा थोड़ा करके कॉन्फिडेंस डाउन जाता जाता है, जब तक आप एटलीस्ट इंटरव्यूज तक नहीं पहुंचते हो। बिकॉज बहुत सारे में शॉर्ट लिस्टिंग आती है, बहुत बहुत सारे में नहीं आती है, जिसमें आपको चाहिए उसमें ना आए तो फिर तो थोड़ा सा मोरल उस टाइम पे डाउन ही रहता है ओवरऑल। सब थोड़ा ना थोड़ा, नो मैटर हाउ गुड और बैड यू आर, योर कॉन्फिडेंस लेवल विल डू दिस अप एंड डाउन थोड़ा, तो वो करेगा उस टाइम पे। सो राइट yeah, just a big sigh of relief कि you have offer from some company, some
somebody is there to hire you, you're not gonna go one place. So that is a very big assurance. Right. So are you cricket fanatic? Because I have friends in Dreams 11, तो काफी perks मिलते हैं, Mm-hmm. matches की tickets मिलती हैं, so yeah, a lot of things are there. Yeah, I am actually गेट के टाइम पे ही स्टार्ट हुआ था ये क्रिकेट देखना मेरा, बिकॉज मूवी देख नहीं सकते, बहुत टाइम निकल जाएगा, एंड कुछ छोटे फॉर्मेट का कितना ही कोई देखे, सो आई लाइक क्रिकेट देख लेते हैं। वो एक दो ओवर देखने के बाद थोड़ा सा रिपीटेटिव लगने लगता है, तो यू डू नॉट इन्वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम, यू जस्ट वॉच इट फॉर 10-15 मिनट, एक दो ओवर देख लो एंड देन यू गेट बैक टू वर्क। अच्छा, नाइस, क्या बात है। तो भाई पैसे की बात करते हैं भाई, तो हाउ वाज द पैकेज डिटेल्स, क्या सीन है ड्रीम 7 में? So Dream 11 का overall the compensation was for 50 lakhs, हम्म। जिसमें से 24 was base and there were, as you said, कि काफी सारे perks रहते हैं, तो that perk includes something called as a proximity allowance, which typically they pay half of your rent, and pay for your travel to the office and those things like क्या things बात like है। that. So अच्छा, that is apart from your CTC, and then there were stock components. so 24 बेस बोला? Yeah. ओके, नाइस। सो okay, nice. So this was very in detail ड्रीम्स 11 का इंटरव्यू एक्सपीरियंस, जो कि मैंने अभी तक तो नहीं देखा कि कहीं पे यूट्यूब में कहीं पे किसी ने Mhm. बताया हो। सो थैंक यू सो मच भाई। आई आई जस्ट होप कि अगर किसी कोई और ये वीडियो देख रहा होगा अपने प्लेसमेंट सीजन से पहले, तो Mhm. लेट्स होप कि बहुत सारे इंसाइट्स मिले। अब बात करते हैं फुजित्सु की।